بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک غریب انسان کی پوری زندگی محنت اور مشوروں میں گزر جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں اس کی جوانی گزر جاتی ہے، اور یہ غریبی کے مشکل دن انسان کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ کتنی ہی خواہشات اپنی موت آپ مر جاتی ہیں اور پھر عمر بھر کے لیے حسرتوں کے ڈھیر میں بدل جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ زندگی کٹ جاتی ہے اور حالات کی چکی انسان کو پیس کے رکھ دیتی ہے۔ میری زندگی بھی مشکلات میں گھری تھی، نہ ہی میکے میں سکون کی زندگی نصیب ہو سکی، نہ ہی سسرال میں۔ کتنے ہی خواب تھے جن کو منو مٹی تلے جا سلایا تھا۔ جب بھی کسی کے گھر میں شادی کی بات چلتی یا کوئی رشتہ آتا، وہ سب کے لیے ہی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، پر ہمارے گھر میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو وہ ایسا ہوتا کہ شاید کوئی بھی لڑکی اپنے لیے قبول نہ کر سکے۔ کوئی بوڑھا، بیمار یا پھر بے حد غریب اور معذور، جس کے پاس کھانے پینے تک کو کچھ نہ ہوتا۔ کیونکہ ہم بھی غریب تھے، اس لیے ہم بہنوں کے لیے ہمیشہ ہی ایسے رشتے آتے۔ غریب کی بیٹی کے لیے غریب گھر سے ہی رشتہ آ سکتا تھا۔ اس دنیا میں آئی تو غربت نے آنکھیں دکھائیں۔ میں نے ایک بہت ہی غریب گھر میں آنکھ کھولی۔ اپنے والدین کی میں تیسرے نمبر والی بیٹی تھی۔ بابا کو ہم نے ہمیشہ بیمار اور کمزور ہی دیکھا۔ نہ جانے ان کو کیا بیماری تھی، کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ بہت زیادہ محنت نے ان کو وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے کونے میں پڑے رہتے اور کھانستے ہوئے اماں ہمیں ان کے قریب نہ جانے دیتی کہ اگر تم میں سے بھی کوئی بیمار ہو گیا تو میں کہاں سے سب کا علاج کرواتی پھروں گی۔ ہر باپ کے لیے محبت اور خلوص ہمیشہ ہمارے دل میں ہی رہتی، اس لیے جب بھی موقع ملتا میں ابا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ میں اتنی چھوٹی اور بے سمجھ تھی کہ ابا کی مجبوری کو نہ سمجھ پاتی اور کہتی، ابا آپ یہاں سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ ابا اب بھی ہمیں باہر لے جایا کریں نا، جیسے میری دوستوں کے ابا ان کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دلواتے ہیں۔ میرے ابا کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی میرے نادانی والی باتوں پہ آنسو آ جاتے تھے اور میں انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کہتی، ابا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، ابا میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ تو ابا میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنی گڑیا کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آؤں گا، اور میں خوش ہو جاتی۔ پھر سے ابا کو اپنی فرمائشیں بتاتی کہ مجھے فلاں لڑکی جیسی گڑیا بھی لا کر دینا، اور کسی کا بتاتی کہ اس جیسے کپڑے بھی مجھے چاہیے، اور ابا سب چیزوں کا وعدہ کرتے کہ میری گڑیا کو یہ ساری چیزیں لا کر دوں گا۔ اور پھر اچانک میری کوئی بڑی بہن مجھے فرمائش کرتے دیکھ لیتی تو فوراً آ کر مجھے وہاں سے لے جاتی اور ڈانٹتی کہ کیوں ابا کو فرمائشیں کر کر کے پریشان کرتی ہو۔ میں ہمیشہ ہی ان سے لڑ پڑتی کہ تم لوگ جلتی ہو کہ ابا میری چیزیں نہ لے کر آ جائیں، پر وہ سب مجھ سے بڑی تھیں۔ شاید وہ ابا کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھتی تھیں، اس لیے ان کی آنکھوں میں ابا کی حالت دیکھ کر آنسو آ جاتے تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ ابا میرے لیے چیزیں لانے کا وعدہ کرتے ہیں تو یہ بھی ان چیزوں کے لیے روتی ہیں۔ پر آج مجھے وہ ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں، ان آنسوؤں کا مطلب بھی جو میں نے اپنا سارا بچپن اپنی بہنوں اور ابا کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ پھر ایک دن میں نیند سے جاگی تو ابا بستر پر موجود ہی نہیں تھے۔ میری اماں اور بہنیں سب رو رہی تھیں، ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، اور میں جب بھی اماں کے پاس جا کر ان سے ابا کا پوچھتی تو میری بڑی بہنیں مجھے ان سے دور کر دیتی اور کہتی کہ تمہارے ابا اسپتال گئے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو کر واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد میرے ابا کبھی واپس نہ آئے، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد کچھ دن سب نے ہمارا بہت خیال رکھا، کھانے پینے پہننے کے لیے بہت کچھ ملتا رہا، پر اس وقت یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ سب صدقہ خیرات ہے۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ سب ملنا بھی بند ہو گیا۔ اب میری اماں نے نہ جانے کون سا کام ڈھونڈ لیا تھا۔ اماں ہر روز کہیں جاتی اور ہم بہنیں گھر میں بس ان کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ صبح سویرے چلی جاتی تو شام کو ہی بس واپس آتی۔ ان کے پاس ہم سب کے لیے کھانا ہوتا جو شاید ان کو وہاں سے ملتا تھا جہاں وہ کام کرتی تھیں۔ ہم جب پورے دن کے بھوکے ہوتے یہ تک نہ سوچتے کہ اماں کن حالات سے گزر کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پیٹ میں بھوک احساس شدت پکڑ لے تو سارے احساس پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ہم سب بہنیں پیٹ بھر کر مزے سے وہ کھانا کھاتے اور جو بچتا وہ کل صبح کے لیے رکھتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس بس وہی کھانا آتا تھا جسے ہم 2 وقت نکال لیتے تھے۔ اگلی صبح پھر اماں چلی جاتی تھی۔ اس طرح ہم نے باپ کی بعد اپنی ماں کو بھی
बस शाम के पहर में ही देखना होता था। उलझनों से भरा हुआ बचपन भी आखिर गुजरता तो अम्मा को अब खाने के अलावा रिश्तों की भी फिक्र लग गई थी। मेरी बहनों की उम्रें बढ़ रही थी, पर हमारे घर भूले से भी कोई रिश्ता ना भेजता। अम्मा ने कई जगह बात की हुई थी, वहाँ से भी कोई रिश्ता आता तो ऐसा कि देखकर मेरी बहनें वहीं पर मर जाना पसंद करती, क्योंकि मैं अभी 14-15 साल की ही थी। इसलिए अम्मा ने अभी बड़ी बहनों की ही बात करनी रखी थी। और एक दिन किस्मत मेहरबान हुई और हमारे घर एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से खूबसूरत नौजवान का रिश्ता आया। पता नहीं उन लोगों को हमारे घर का पता किसने दिया था। रिश्ते के लिए लड़का खुद आया था और साथ में एक जवान खातून थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस खातून ने हम सब बहनों में से मुझे पसंद किया था। मेरी 3 बड़ी बहनें भी थीं, इसलिए अम्मा ने मेरा रिश्ता करने से मना किया, पर वो लोग अम्मा को बहुत बड़ी रकम देने के लिए भी तैयार थे। अम्मा फिर भी इनकार करती रहीं। मैं अभी बहुत छोटी थी, पर गुर्बत और हालात ने इतनी समझ दे दी थी कि अगर मेरे बदले में मेरी अम्मा को इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे बाद अम्मा और बहनों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। इसलिए अम्मा के मना करने के बावजूद मैंने खुद वो रिश्ता कबूल कर लिया, जिस पर वो खातून बहुत खुश हो रही थी। उसने मेरे हाथ में भी बहुत सारे पैसे दिए थे। मैं समझ रही थी ये खातून शायद लड़के की बहन या भाभी होंगी। वो लोग रिश्ता पक्का करके निकाह का दिन बताकर चले गए। मेरी सारी बहनें मुझे हसरत भरी निगाहों से देखने लगी, क्योंकि वो सब मुझसे बड़ी थी। अम्मा बाद में मुझे कह था कि अगर मैं मना कर चुकी थी तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी रिश्ता कबूल करने की। हो सकता था वो लोग किसी बड़ी बहन से ही रिश्ता कर लेते। फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर वो लोग चले जाते तो क्या होता, इस तरह से आपके ऊपर से एक बेटी का बोझ तो कम हो जाएगा ना, और बदले में इतने सारे पैसे मिलेंगे कि बाकी बहनों की शादियां भी आसानी से हो जाएंगी। मेरी ये बात भी सबको सही लगी और अपनी गुर्बत के हिसाब से अम्मा ने थोड़ी बहुत मेरी शादी की तैयारियां कर दी थी। मेरी बहनें मुझसे शादी के मुतालिक बातें करती कि वहाँ जाकर बदलना जाना, हम सब बहनों को भूल मत जाना, तुम तो अब बहुत बड़े बड़े गाड़ियों में घूमोगी, बड़े बड़े बंगले में रहोगी, और तुम्हारा शौहर कितना प्यारा है। पापा तुम्हें गुड़िया कहते थे, देखा पापा का कहना सच हुआ, तुम तो वहाँ शहजादी ही बन जाओगी। फिर कहती कि कभी कभी यहाँ भी चक्कर लगा लेना, तुम तो वहाँ इतने अमीर लोगों के बीच जा रही हो, हम नहीं आ सकेंगे, तुम ही आया जाया करना। फिर हम सब बहनें एक दूसरे से दूर होने की बातें करती, बहुत रोती। हम गरीबों ने कभी गाड़ी बंगला या फिर अमीर लोगों का सोचा भी नहीं था। बस शादी के बाद दाल रोटी पेट भर के मिल जाएगी, इतनी ही हमारी सोच थी। ये सब अचानक कैसे हुआ था खुदा जाने। बहनों की इतनी बातें सुनकर मेरे दिल में बहुत ख्याल आए थे। मेरा प्यारा घर होगा, शौहर होगा, खुशहाल ज़िंदगी के कुछ सुहाने ख्वाब मेरी आंखों ने भी सजा लिए थे। अब मुझे हर वक्त इन्हीं की ख्यालात हैं। मेरा होने वाला शौहर सच में बहुत प्यारा था। कितनी बड़ी मेहरबानी थी उसकी इस पर, मुझे गरीब को इसने अपनी बीवी बनाने का फ़ैसला किया था। मैं दिल ही दिल में उसका चेहरा याद करके बहुत खुश होती, और एक खुशी ये भी थी कि मेरी अम्मा की जिम्मेदारियां भी कुछ कम होंगी और उन्होंने भी पैसे मिलेंगे। फिर दिल थोड़ा डर जाता कि वो लोग निकाह का कह कर गए हैं, इसके बाद उनका कोई पैगाम कोई पता नहीं था। अभी निकाह की तारीख में कुछ दिन बाकी थे। फिर भी मुझे कि उनकी किसी खबर का बहुत इंतज़ार था। डर था कि कहीं वो लोग मुझे अपनाने से इनकार न कर दें। पर खातून ने हाथ में जो पैसे दिए थे वो इतने ज़्यादा थे, इतने पैसे भला देकर फिर क्यों इनकार करेंगे, ये सोचकर दिल को तसल्ली होती। मैं अजीब कश्मकश में थी। और फिर आखिरकार इंतज़ार के दिन ख़त्म हुए। वो लोग अपने वादे के मुताबिक निकाह वाले दिन आ पहुँचे। वो 2 गवाहों और एक निकाह ख्वाह के अलावा आज भी वो कल 2 ही लोग आए। वो खातून और मेरा होने वाला शौहर। खातून ने मेरी अम्मा को 10 लाख रुपए दिए और मुझे निकाह के लिए तैयार करने का कहकर खुद बाहर गाड़ी में चली गई। ये रकम हमारे लिए इतनी बड़ी थी कि हम लोगों के होशो हवास ही उड़ गए थे। पर मैं अपनी बहनों को खुश देखकर ही मुतमईन थी कि मेरा ये फ़ैसला सबके हक़ में कितना अच्छा साबित हुआ है। पर मेरी अम्मा को न जाने इस खातून ने पैसे देते वक्त क्या कहा था, जिसके बाद मेरी अम्मा इतनी उदास हो गई थी। मैंने बहुत पूछना चाहा पर माँ ने कुछ ना बताया। बोली तुम बेफिक्र होकर तैयार हो जाओ। अजीब बात ये थी कि वो लोग मेरे लिए शादी का जोड़ा तक नहीं लाए थे, जबकि मुझे लगा था कि मेरा शौहर बहुत सारा सामान देकर आएगा। हमारी शादी के लिए अम्मा ने मेरे लिए सूट बनवाए थे। मैंने उन्हीं में से एक लाल रंग का जोड़ा पहन लिया और उसी में
हमारा निकाह पढ़ाया गया। मैंने देखी गहराइयों से अपने शौहर को कबूल कर लिया और मैं इतनी खुश थी जैसे ये ज़मीन व आसमान मेरे लिए खुशियों से भर गए हैं। मैं अपनी बहनों से बहुत सारे वादे कर गए। अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठने के लिए रवाना हो गई। गाड़ी हमारे दरवाजे पर ही थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कच्चे घर के दरवाजे पर कभी ऐसी शानदार गाड़ी भी आ सकती है। आज ऐसी शानदार गाड़ी आई थी, वो भी मेरे शौहर की, जिसमें वो मुझे लेने आया था। अपने साथ शरीक हयात बनाकर मुझे अपने साथ बिठाने के लिए ये सब मुझे ख्वाब ही लग रहा था। मैंने जैसे घर के दरवाजे को पार किया तो मेरी बहनों और माँ की सिसकियों की आवाज़ मेरे दिल तक उतर गई थी। मैं खुद को ना रोक सकी और फिर पलट कर उन सब के गले मिली। इस दफ़ा अम्मा ने खुद मुझे गाड़ी तक छोड़ा और पीछे की सीट पर बैठ गई। मेरा शौहर उस औरत के साथ आगे बैठा था। वो दोनों आपस में कुछ ज़ुबानी अल्फाज और अंग्रेज़ी में बातें करने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद आया बचपन, मुझे भी पढ़ने का शौक़ था। एक तो बात मोहल्ले की लड़कियों के साथ स्कूल तक गई थी, पर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा नहीं था इतने बड़े घर में शादी होगी, वरना कुछ मैं भी पढ़ लेती। आज अपनी इस खामी पर बहुत अफसोस हो रहा था, पर फिर अपने शौहर को देखकर तसल्ली हो जाती कि मेरी तमाम तर खामियों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनाया है। गाड़ी चलती रही और उन दोनों में न जाने किस बात पर बहस चलती रही। वो दोनों मुझसे इस तरह गाफिल होकर बैठे थे जैसे उन दोनों के अलावा कोई गाड़ी में मौजूद ही नहीं। मुझे अपने शौहर से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी, फिर भी मैं खामोशी के साथ बैठी रही। गाड़ी बहुत बड़े बड़े आलीशान घर के गेट में दाखिल हुई थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ रहूँगी इस घर में, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पर हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, मेरा शौहर मुझे एक कमरे में ले गया जहाँ एक औरत बीमार हालत में लेटी हुई थी। शौहर ने बताया, ये मेरा बाप है और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना, और जो भी ये कहें कभी इनकार मत करना। मैं अभी कोई बात नहीं कह पाई थी, अभी उनको देख ही रही थी कि वो मुझे ये सब बताकर वहाँ से चले गए। मैं उसी कमरे में अपने ससुर के पास ही बैठी रही। कभी कोई नौकर कमरे में आता तो कभी कोई। सभी मुझे अपने ससुर की खिदमत और ख्याल करने के बारे में समझाते कि कैसे उनको खाना खिलाना है और कैसे दवाई देनी है, उनके कौन से इशारे का क्या मतलब होता है, वो खाना कैसे मांगते हैं और पानी कैसे, पाँव दबाने के लिए कैसे कहते हैं, तो उठाकर बिछाने के लिए कैसे। मुझे ये सब इतना अजीब लग रहा था कि मुझे पहले ही दिन ये सब क्यों समझाया जा रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मेरे अलावा यहाँ और कोई औरत मौजूद नहीं, मैं इस घर में अकेली ही हूँ, इसलिए सब ससुर के बारे में मुझे ही बता रहे हैं। मैंने हर बात सही सही याद कर ली। फिर ही दिन उनको अच्छे से खाना खिलाया। रात हुई तो उनके पाँव दबाने लगी। मैं थी तो बहुत गरीब लड़की, मुझ पर यह हकीकत बाद में खुली कि अम्मा ने मेरी शादी पैसों के एवज़ बहुत ही अमीर आदमी से कर दी। हाँ अम्मा की हाँ, मैं हाँ मिलाई थी, मगर ये सब होगा मेरे साथ कभी सोचा भी नहीं था। शादी की पहली रात फिर जब ससुर के पाँव दबाने गई, मुझे इंतज़ार था कि मेरे ससुर सो जाएंगे तो मैं अपने शौहर के कमरे में चली जाऊंगी, पर देखते देखते सारी रात गुजर गई, वो ना सोए। मुझे जब भी नींद का झटका लगता वो मुझे उठाने के लिए अपने तरीके से शोर मचाते और मैं जाग जाती। वो फिर से पैर दबाने का इशारा करते। इस तरह अगली सुबह तक उनके पैर ही दबाती रही। सुबह हुई, नौकर उनका नाश्ता मुझे देकर गया कि उन्हें खिला दो। मैंने अभी उनको नाश्ता खिलाया ही था कि वो औरत जो मेरे शौहर के साथ हमारे घर आई थी, वो ससुर के कमरे में आई और उनके हाथ में जो कुछ दवाइयाँ थीं जो उन्होंने मेरे ससुर को खिलाई तो वो फ़ौरन सो गए। मैंने पूछा, बाजी मेरे शौहर कहाँ हैं? तो वो खातून बोली, इसकी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, वो दफ्तर जा चुके हैं। तुम बाहर चलो और नाश्ता करके बाहर घर के कामों में नौकरों का हाथ बटाओ। अब्बा जी सो चुके हैं, अब ये रात को ही उठेंगे, पर तुमने वक्फे वक्फे से कमरे में आकर उनकी खबर रखनी है। मैं अभी तक ये बात ना जान सकी थी कि ये बाजी मेरी नंद है या जेठानी कौन है, क्योंकि मेरी अभी तक किसी से ससुर की तबीयत के अलावा कोई बात नहीं हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद वो बाजी ने बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। घर में मैं अकेली सिर्फ नौकरों के साथ रह गई। थोड़ा बहुत काम मैंने उनके साथ मिलकर किया। फिर सोफे पर बैठने तो वहाँ बैठे बैठे मेरी आँख लग गई, क्योंकि मैं पूरी रात जागती थी। मुझे वक्त का पता ही ना चला और दोपहर हो गई जब मुझे उस बाजी ने वापस आकर जगाया। बोली, यहाँ क्यों सोई हो? और नौकर को बुलाकर उन्होंने उससे कहा कि इसको अपना बेड दिखाओ। वो नौकर फिर से मुझे ससुर के कमरे में ले गया और वहाँ कोने में रखा एक छोटा सा बेड दिखाते हुए बोला, तुम यहाँ पर सोया करो
ताकि अब्बा की खबर रख सकूं। मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए हर रोज़ वहीं सोने लगी। मुझे खाना और कपड़े वगैरह नौकर ही देते थे और दिन में मुझे अपने साथ काम में मदद करने का भी कहते थे। मैं इतने छोटे घर से आई थी कि मुझे अभी तक ये समझ ना आया था कि आखिर मेरा यहाँ कौन सा ओहदा है। मैं खुद को अभी तक इस घर की मालकिन ही समझ रही थी, पर शौहर को देख के मुझे कई दिन गुजर गए थे। मुझे कुछ पता नहीं था वो कब घर आते हैं, कहाँ से आते हैं, कब जाते हैं। मेरी नज़रें तरस रही थी कि आखिर बार इन्हें एक देखूं या बात करूं। आखिर मैं उन्हीं की खातिर तो यहाँ आई थी। एक रोज़ उस बाजी को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, तो सुबह सवेरे ही मेरे ससुर को दवाई खिलाने आ गई। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये लोग दिन भर उन्हें दवाई देकर सुला देते हैं और रात को जागने के लिए छोड़ देते हैं, जब मुझे उनके साथ जागना पड़ता है। वो दवाई खिलाकर जल्दी जल्दी से चली गई तो मैं अभी आज कमरे से जल्दी बाहर आ गई थी और आज मेरे मन की मुराद पूरी हुई थी। मैंने अपने शौहर को एक कमरे से बाहर निकलते देखा था और मैं समझ गई कि यही हमारा कमरा है। वो तैयार होकर कहीं जा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी से उनके पीछे जाने लगी। जब वो गेट तक पहुँचे तो मैंने पीछे से उन्हें आवाज़ दी, सुनिए। उन्होंने पलटकर मुझे देखा। मैंने कहा, मुझे आपसे बात करनी है। वो अजीब नज़रों से पहले मुझे और फिर सब नौकरों की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं शाम को वापस आकर तुमसे बात करूँगा। मैं बहुत खुश हो गई और पूरा दिन अपने शौहर के इंतज़ार में गुजार दिया। शाम तक मेरे ससुर जाग चुके थे। फिर भी मैं बार बार कमरे से निकलकर गेट की तरफ देखती कि कब मेरा शौहर आया और मुझसे बात करेंगे। और फिर मैंने जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनी तो बाहर आ गई, पर गाड़ी में वो बाजी वापस आई थी और उन्होंने मुझे माँ जी के कमरे से बाहर देखा तो डांट दिया कि इस वक्त वो जागते हैं तो तुम रात को बाहर ना आया करो। मैं मायूस होकर अंदर चली गई और शौहर का इंतज़ार मुझे बहुत था, इसलिए मैंने आज जानबूझकर अब्बा जी को वो दवा खिलाई। जब वो बाजी खिला कर जाती थी, ससुर वो दवाई खाने के बाद थोड़ी ही देर में सो गए तो मैंने जिस कमरे से शौहर को निकलते देखा था वहाँ चली गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ तो वो बाजी जिन्हें अपनी जिठानी या नंद समझती थी, वो मैंने शौहर के साथ बैठी थी। मुझे देखते ही वो चौंक गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ तक आने की? मैं डर गई और हिचकिचाते हुए शौहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, उन्होंने कहा था कि रात को बात करेंगे। वो बाजी चिल्लाती हुई शौहर से मुखातिब हुई कि ये क्या कह रही है। मैं उन दोनों को झगड़ता देखकर डर गई और फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। उनका शोर काफ़ी देर तक बाहर तक आ रहा था और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि उन दोनों का रिश्ता जो मैं समझ रही थी वो नहीं बल्कि कुछ और ही है। मैं रोते रोते ससुर के कमरे में आ गई और बहुत देर तक बेड पर बैठी रोती रही। आधी रात गुजर चुकी थी पर मुझे नींद नहीं आई थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। मेरा शौहर आया था। उसने अपने बाप की तरफ देखा और फिर मेरे पास आया। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरी बीवी है, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मेरे इस घर में और दौलत की अकेली मालिक है। ये सब कुछ उसी का है। तुम आइंदा ख्याल रखना, उसे कभी कोई शिकायत ना हो। वो वापस जाने लगे तो मैंने पूछा, तो मुझसे शादी क्यों की आपने? अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था कि वो बाजी कमरे में दाखिल हो गई और मेरे शौहर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि इन्होंने मुझे आपसे निकाह करने के लिए मजबूर किया था। फिर बाजी ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से ख़रीदा है 10 लाख रुपए में। बहुत बड़ी रकम दी है तुम्हारी माँ को। तुम्हारे पीछे वो लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सब काफ़ी नहीं? तुम लोगों के लिए मैंने एक बार अपनी माँ और बहनों के हालात के बारे में सोचा और बोले कि आप लोग मुझे वैसे भी ख़रीद सकते थे, निकाह करवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो वैसे ही ज़िंदगी भर अब्बा जी की खिदमत कर लेती, निकाह करके कम से कम मेरे जज्बात से तो ना खेलते। और बाजी ने कहा कि हर कोई ऐसा कहता है, तुमसे पहले भी कई लड़कियाँ आई और चली गईं। अगर हम तुम्हारा निकाह किसी नौकर के साथ भी करते तो आखिर कभी ना कभी वो तूने अपने घर ले जाने का सोचता, पर अब तुम किसी घर की हो, कहीं नहीं जा सकती, ना ही कोई और निकाह कर सकती हो। ये सब बोलकर वो दोनों कमरे से चले गए और मैंने पूरी रात रोते हुए गुजार दी। अब मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि मैं इस घर की बस एक मुलाजमा ही हूँ। फिर भी अब्बा जी की खिदमत में दिल से करती थी। उन्हें देखकर मुझे अपने बाबा याद आ जाते थे। वो भी इसी तरह की बिस्तर पर थे। शायद उन्हीं की खिदमत करके मैं उन्हें कुछ सुकून बख्श सकती।
मेरी माँ कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी, पर मैंने कभी उन पर ये राज खुलने नहीं दिया। वो मुझे इतने बड़े घर में देखकर बहुत खुश होती थी और अब उनकी हालात भी अच्छे हो चुके थे। मैं भी उनको अच्छी हालत में देखकर मुतमईन हो जाती। मेरे बाद मेरी बहनों के भी अच्छी अपनी बिरादरी में शादियाँ हो गईं। वो सब बहुत खुश थी। मैंने अपने ससुर को दिन में नींद की दवाई खिलाने से बाजी को मना कर दिया था। मैं दिन रात उनकी खिदमत करती और उनके साथ वक्त गुजारती थी। वो भी अब पहले से कुछ ठीक होने लगे थे और बात करने लगे थे। वो अक्सर अपने बेटे को कमरे में बुलाते और जब तक वो अपनी बाप के साथ बातें करते, मैं भी जी भर के उन्हें देख लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरी तरफ तवज्जो करना शुरू की थी। कभी मुस्करा कर देख लेते और बात भी कर लेते थे। मैं खुश हो जाती। आखिर वो मेरे शौहर थे। इतने सालों में बाजी की कोई औलाद ना हुई। वो बाहर मुल्कों तक इलाज करवा चुकी थी, पर कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ, डॉक्टरों ने उन्हें साफ इनकार कर दिया और मेरे शौहर को सबने दूसरी शादी का मशवरा दिया। फिर बाजी जो कि रिश्ते में मेरी सौतन थी, उनको भी ये बात मानना पड़ी और उन दोनों ने मुझे अपने शौहर के बीवी के रूप में कबूल कर लिया। कुछ ही वक्त में मैं उम्मीद से हो गई और सबको ही इस खुशी थी। वक्त गुजरता रहा और मैं एक के बाद दो प्यारे बेटों की माँ बन गई। अब मुझे अपने घर में वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो एक खुशहाल औरत को चाहिए होते हैं। पर मैं अब भी बाजी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने एक बेटा उन्हीं को दिया हुआ है। वो हर वक्त उनके पास होता है। मेरे शौहर भी हमारा इतना प्यार देखकर बहुत खुश